May-June 2022, variance 41. The duration of this paper is for 2 hours. All right. Let's start the paper, guys. The solubility of group 2 sulfates decreases down the group. Explain this trend. So that's a very simple trend down the group. Ionic radius increases. And if ionic radius increases, obviously charge density decreases. And if charge density decreases, lattice energy and hydration enthalpy both decreases. But hydration enthalpy decreases more significantly. And which is why standard enthalpy change of solution is endothermic, and therefore solubility decreases. All right. Describe what is observed when magnesium and barium are reacted separately with an excess of dilute sulfuric acid. So when magnesium reacts with sulfuric acid, you will get a colorless solution and a bubbles of gas is given off. And bubbles of gas is given off. When barium reacts with sulfuric acid, white precipitates of barium sulfate is formed. Also, bubbles of gas is given off. All right. Solubility product KSP of barium sulfate is 1.08 into 10 to the power minus 10 mole square DM minus 6 at 298 Kelvin. Calculate the solubility of barium sulfate in gram per 100 cm cube of solution. All right. So first of all, let's make the ionic equation for barium sulfate. It ionizes into its barium ions and sulfate ions. Right? ये 1 मोल है, according to the equation ये भी 1 मोल है और ये भी 1 मोल है. Obviously KSP की वैल्यू गिवन है, तो अगर मैं KSP का एक्सप्रेशन लूंगा फॉर द अबव इक्वेशन तो वो कुछ इस तरह से होगा. Concentration of barium ion and concentration of sulfate ions. KSP की वैल्यू is given 1.08 into 10 to the power minus 10 and obviously barium ion को भी हम x ले लेंगे क्योंकि हमें concentration नहीं मालूम, और हम sulfate ion को भी 1:1 की वजह से x लेंगे क्योंकि हमें उसकी भी concentration नहीं मालूम. So we can find the value of x from here. So let's find the value of x.
under root 1.08 exponent minus 10. So it's going to be 1.04 into 10 to the power minus 5 mole per dm cube. Now per dm cube is basically 1000 cm cube. So we conclude that 1000 cm cube has this much moles. So 1.04 into 10 to the power minus 5 moles. If we have 100 cm cube, how much moles we have? Into 100 divided by 1000. So it's going to be 1.039 into 10 to the power minus 6 moles, right? Now we need to find the mass of barium sulfate in 100 gram. So we have moles of barium sulfate in 100 gram. तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा बेरियम सल्फेट के MR से. So MR, let's find out the MR. Barium is 137 plus 32 plus 16 times 4 is going to be 232. So 232 into 1.039 exponent minus 6. So it's going to be, I believe, 2.410. Yeah, that's the answer in my calculator. 2.410 into 10 to the power minus 4 gram. So 2.410 into 10 to the power minus 4 gram is the answer. All right. Let's move on to the next part of the question. The equation for the formation of a gaseous sulfate ion is shown. When sulfur and oxygen are reacting together in the presence of electron, will turn to sulfate ions, and that's called a standard enthalpy change of formation of sulfate. Calculate the standard enthalpy change of formation of sulfate. It may be helpful to draw an energy level cycle. Use relevant data from the table in your calculations. Okay. So we have formation ka data, we have lattice energy ka data, we have atomization and ionization energy ka data, right? So let's make the Hausdorff cycle for lattice energy. That's gaseous barium ion. It's barium sulfate, yeah. And that sulfate ion gaseous state mein. And you need to convert them into barium sulfate. That's your lattice energy. Okay. That's your solid. In order to make barium sulfate, barium, sulfur, and oxygen has to be in a standard condition. Arrow की direction upward कर देते हैं. It's going to be standard enthalpy change of formation. और इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है. और इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं डेल्टा H1 से. राइट? हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एरो बना लेते हैं so that we can arrange the values accordingly. So this value and this value should be positive because ये दोनों arrow clockwise से match हो रहे हैं. This value has to be negative क्योंकि ये clockwise arrow से match नहीं हो रहा. So what we can do is we can write delta H1 plus lattice energy plus minus standard enthalpy change of formation equals to 0. Now what is delta
H1. So delta H1 has so many steps. It includes all the barium thing, यानी barium की atomization होगी, barium की second ionization energy भी involved होगी, right? So मैं यहाँ थोड़ा सा elaborate कर देता हूँ so that आपका revision हो जाए. Delta H1 में atomization of barium, okay. Then first ionization energy of barium, then second ionization energy of barium, that is the barium का data in delta H1, plus सल्फर सॉलिड है, सबसे पहले गैस में कन्वर्ट होगा, तो ऑब्वियसली एटोमाइजेशन ऑफ सल्फर प्लस एटोमाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होगा, एटम में कन्वर्ट होगा, दैट्स अ वेरी लॉन्ग डेटा है, ठीक है, प्लस सल्फर से रिलेटेड एटोमाइजेशन भी होगी which is plus 279, all right. Then first electron affinity of oxygen and then second electron affinity of oxygen, that is the delta H1 plus lattice energy plus standard minus standard enthalpy change of formation equals to 0. Now guys look, ये जो आपके पास डेटा है ना, ये डेटा, ये सब अमेलगमेट करोगे तो ये बनेगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट आयन, ओके, which is given here, ठीक है, and that's what we need to calculate. So instead of writing all these shaded area, इस पूरे shaded area को लिखने के बजाय मैं इसकी जगह पे x कर लूंगा, ठीक है, because I need to find that. So now let's plug in the values in this formula. Barium की atomization is plus 180. First ionization energy of barium is 503. Second ionization energy of barium is 965. Right? ये barium का data हो गया, plus this entire shaded area represents X because ये standard enthalpy change of formation of sulfate ion को represent कर रहा है, तो मैंने X लिया, plus lattice energy is given minus 2469 minus 2469, and that's minus, और वैल्यू है मेरे पास minus 1473 equals to 0. Now we need to find the value of X. So that's going to be very easy for me. अगर मैं values arrange कर लूँ, 180 plus 503 plus 965 plus 1473 minus 2469. So it's basically X plus 652 equals to 0. Then X equals to minus 652. And that's my answer, kilojoules per mole. So what we can write here is minus 652 kilojoules per mole. Guys, मुझे याद पड़ता है कि मैंने इस तरह का एक क्वेश्चन आपके साथ शेयर किया हुआ है, बल्कि एक नहीं 2-3 क्वेश्चन शेयर किए, मैं आइडिया थ्रो किया हुआ था कि काम किस तरह से करते हैं. बॉन्ड हाइब्रिड साइकिल जो है उसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एक बॉन्ड हाइब्रिड साइकिल मैंने ऑल्टरनेट भी दी हुई है आपको, जो कि टेक्निकली हम वही करते हैं. सो आपको दोनों बॉन्ड हाइब्रिड साइकिल प्रिपेयर करनी होंगी इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने के लिए. ऑलराइट, suggest how the lattice energy of barium sulfate differs from the lattice energy of calcium sulfate. Explain your answer. आप जानते हैं कि बैरियम का आयनिक रेडियस कैल्शियम के आयनिक रेडियस से ज्यादा होता है. जब आयनिक रेडियस ज्यादा होगा तो चार्ज डेंसिटी कम होगी. जब चार्ज डेंसिटी कम होगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन आयंस बिकम्स वीकर. लैटिस एनर्जी ऑब्वियसली बैरियम सल्फेट
लेस एक्सोथर्मिक होगी. सो लेट्स राइट दैट हियर. 2 मार्क्स हैं तो थोड़ा तमीज से लिख देते हैं, अच्छे से लिख देते हैं. सो बेरियम आयन हैज large ionic radii so it has less charge density, electrostatic attraction, between ions becomes weaker, hence lattice energy of barium sulfate becomes less exothermic. Okay. The reaction of solid hydrated barium hydroxide with ammonium salt is endothermic. Okay. Calculate the minimum temperature at which the reaction of hydrated salt with ammonium nitrate becomes feasible. Show all your working. The most important statement here is that the reaction is feasible at this minimum temperature. And if the reaction is feasible at this minimum temperature, that means delta G should be 0. All right. That's what we have discussed in our lecture. So हम यहाँ पर discussion करेंगे delta G naught equals to delta H naught R minus T delta S naught. So everything is given. Delta HR की value is given, which is plus 132 minus T. We need to find out delta S की value is given plus 616. और हम सब जानते हैं कि ये किलो जूल पर मोल होता है, ये भी किलो जूल पर मोल होता है. तो ऑब्वियसली इस की जो एनर्जी की वैल्यू है वो जूल्स में गिवन है. मैं इसको किलो जूल्स में कन्वर्ट करूंगा एंड फॉर दैट आई नीड टू डिवाइड इट बाय 1000. राइट. सो जब आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, और आंसर आपके पास आएगा कुछ इस तरह से. ये हो जाएगा बेटा आपके पास 0. ये हो जाएगा बेटा आपके पास टेम्परेचर इक्वल्स टू 132 डिवाइडेड बाय 0.616. ठीक है. सो यहां से टेम्परेचर आपके पास आ जाएगा 214.29 केल्विन. तो हम यहाँ लिख देंगे 214.29 केल्विन. ओके. उसके बाद वो कह रहे हैं हमसे barium hydroxide reacts readily with ammonium chloride on mixing at room temperature. Delta HR की value is given. Some relevant standard entropies are given in table this. Calculate the standard Gibbs free energy change delta G naught for this reaction at 25 degrees Celsius. So first of all, I need to find out the standard entropy change by using this data. उसके बाद फिर मैं delta G calculate करूंगा. ठीक है. So first of all, let's find out delta S naught. Delta S naught आपको पता है summation of standard entropy of product minus summation of standard entropy of reactant. सही है. summation of standard entropy of product. तो प्रोडक्ट में हमारे पास अमोनिया है. अमोनिया
की एंट्रोपी की वैल्यू 192 दी हुई है, सिंस इट हैज 2 मोल इन द इक्वेशन, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, प्लस आपके पास बैरियम क्लोराइड हाइड्रेटेड की एंट्रोपी है विच इज 203, प्लस आपके पास वाटर है, वाटर की एंट्रोपी है 70, मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे बिकॉज इट हैज 8 मोल्स इन द इक्वेशन, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, माइनस रिएक्टेंट। रिएक्टेंट से रिलेटेड हमारे पास हाइड्रेटेड बैरियम हाइड्रोक्साइड है which has an entropy value of 427, प्लस अमोनियम क्लोराइड हमारे पास 95 है, हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज वी हैव 2 मोल्स इन द इक्वेशन। तो यहां से अगर हम स्टैंडर्ड एंट्रोपी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो मोस्ट लाइकली वो आएगा हमारे पास 530 प्लस 530 जूल्स, 530 जूल्स मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, राइट। और अब ये मेरा फर्स्ट स्टेप था। नाउ इन माय सेकंड स्टेप मैं अप्लाई करूंगा डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट आर माइनस टी डेल्टा एस नॉट। डेल्टा जी नॉट मुझे फाइंड आउट करना है, डेल्टा एच आर की वैल्यू गिवन है प्लस 133 माइनस टी, टी दिया हुआ है मुझे टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, मैं उसमें 273 ऐड करूंगा तो इट्स गोइंग टू बी 298। डेल्टा एस नॉट की वैल्यू मैंने कैलकुलेट की प्लस 530, ये जूल्स में है, इसको किलो जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। जब हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा डेल्टा जी नॉट का -24.94 किलो जूल्स per mole. So delta G naught is going to be 24.94 kilojoules per mole. I hope it makes sense to you. So that's the question number 1, and it has total 16 marks. Let's move on to the next question. Let's see what we have in this paper. So that's transition element. Transition element is one which can form one or more stable ion having partially filled d orbital. So transition element is one which can form two or more stable ion having partially filled d orbital. All right. Now the next is sketch the shape of 3D z square orbital, and that was easy. ये आपका x axis, ये y, ये z, तो dz square ये था हमारा, if you remember, on the axis होता है ये, ठीक है। Now the next is manganese 4 oxide MnO2 acts as a heterogeneous catalyst in the decomposition of hydrogen peroxide. Explain what is meant by the term heterogeneous catalyst. When reactants and catalyst exist in different physical state, okay, describe the mode of action of heterogeneous catalyst in the reaction. So that's what we have discussed in the class. First, we need to diffuse the gases onto the heterogeneous catalyst. So diffuse the gases onto the catalyst. Now in the second, these gases will absorb
via bond onto the surface of catalyst through active site. So these gases will adsorb onto the surface of catalyst via active site जब गैसेस जो है वो एब्जॉर्ब होंगी ऑन टू द सर्फेस ऑफ कैटलिस्ट बाय एक्टिव साइट, तो गैसेस के जो इंटरनल कोवलेंट बॉन्ड्स हैं वो वीकन होना शुरू हो जाएंगे. This makes the internal covalent bonds weaker. And as a result, series of reaction होगा, product बनेगी. Series of reaction can produce the product, can form the product, in fact, can form the product, which will leave via desorption, which will leave the surface of catalyst via desorption. Okay. Magnesium 7 oxide, जिसका formula Mn2O7 है, can be made by treatment with KMnO4 with concentrated sulfuric acid, reaction 1. Okay, that is reaction 1. Okay. Now in the second phase, Mn2O7 readily decomposes at room temperature to form manganese 4 oxide and a colorless diatomic gas. Reaction 2. Construct equation for both of the reaction described. Okay. So that's not that much difficult actually. That's, oh my bad. That's KMnO4 is reacting with sulfuric acid. That was the reactant examiner ने हमें question में दिए हैं, और हमसे वो कह रहे हैं कि प्रोडक्ट बन रही है इक्वेशन 1 में. प्रोडक्ट बन रहा है Mn2O7, एंड ऑब्वियसली अगर Mn2O7 बनेगा तो ऑब्वियसली यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन, दोनों मिलकर बनाएंगे वाटर. ऑब्वियसली यहाँ से सल्फेट, यहाँ से पोटेशियम, दोनों मिलकर बनाएंगे पोटेशियम सल्फेट. First we need to find out, first we need to balance the equation. यहाँ पर 2 potassium है, तो let's put 2 here. Okay, how many oxygens here now? 7 plus 1 8, 8 plus 4 12. Let's find out. 2 times 4 8, 8 plus 4 12. So oxygen balanced, potassium manganese balanced, and sulfur balanced. All right, so that's the first equation. Now in the second equation, Mn2O7 decomposes at room temperature to give MnO2, and obviously we need to balance this equation. So यहाँ अगर 2 है तो मैं यहाँ पर भी 2 लगा दूं. Now how many oxygens left here? How many oxygens here? 2 times 2 4. How many oxygens here? 7. So it means 3 oxygen left. तो हम यहाँ लिख देंगे 3/2 O2. All right. Now in the next question, aqueous manganese 2 ions show similar chemical properties to aqueous copper 2 ions.
which reacted separately with NaOH and with concentrated HCl. That's what we have discussed in the class, in the lecture. Write ionic equation and state the type of reaction for the reaction of hydrated manganese 2 ions with NaOH. Ionic equation तो बहुत आसान है बेटा, आपके पास है MnH2O taken 6 2 plus 2 hydroxide ions. So it will give you manganese 2 hydroxide, MnOH taken 2 plus 6H2. Okay. And obviously इसके प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हुए हैं तो हम इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं. अगर आपको मेरा लेक्चर याद हो, मैंने काफी डिटेल से ये बात समझाई थी, मैकेनिज्म के थ्रू समझाई थी. मैंने कहा था कि ये एल्कली है और चार्ज डेंसिटी की वजह से ये एसिडिक हो जाता है, प्रोटॉन डोनेट कर देता है, इसका मतलब इसको हम एसिड बेस रिएक्शन भी कह सकते हैं. तो आप इसको एसिड बेस रिएक्शन भी कह सकते हो. आई रिपीट कि ये एल्कली है बिकॉज ऑफ हाई चार्ज डेंसिटी ऑफ मैग्नीज आयंस. वाटर अपना प्रोटॉन डोनेट कर देता है इस कॉम्प्लेक्स में से, जिसकी वजह से प्रोटॉन डोनर होता है ये, एंड एज अ रिजल्ट हम इसको एसिड बेस रिएक्शन भी कह सकते हैं. Now the next is write the ionic equation and state the type of reaction for the reaction of hydrated manganese ions with concentrated HCl. तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास MnH2O taken 6 2 plus. हम इसको रिएक्शन करवा रहे हैं concentrated chloride ions के साथ. Reaction is going to be reversible. So it will turn to MnCl4 2 minus plus 6H2O. एग्जैक्टली वही इक्वेशंस हैं जो कॉपर में भी हमने की हुई है, लेकिन मैंने मैग्नीज भी डिस्कस किया हुआ है आपके साथ. इसको हम कहते हैं लाइगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड लाइगेंड एक्सचेंज रिएक्शन. क्लोराइड वाटर को डिस्प्लेस कर रहा है, व्हिच मींस इट इज लाइगेंड एक्सचेंज रिएक्शन और लाइगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है. पार्ट थर्ड, table list relevant electrode potentials for some electrode reactions. Suggest the formula of the manganese species formed when Mn2 plus reacts with chlorine. State the type of reaction. Formula of manganese species form. Okay, आप सब जानते हैं कि क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो अगर क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो ऑब्वियसली Mn2 प्लस को ऑक्सीडाइज करके Mn4 प्लस आयंस में कन्वर्ट करेगा. राइट. तो मुझे वो इक्वेशन यूज करनी है जिसमें Mn2 प्लस ऑक्सीडाइज होकर Mn4 प्लस में कन्वर्ट हो. मैं ये इक्वेशन यूज नहीं कर सकता क्योंकि मैग्नीज मेटल आ रही है, इसमें मैग्नीज नहीं है, मैं ये भी यूज नहीं कर सकता. ये मैं यूज कर सकता हूं इसलिए क्योंकि इसमें MnO2 बन रहा है सॉरी, और इस MnO2 में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है. तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरीन इस Mn2 प्लस को ऑक्सीडाइज करके MnO2 में कन्वर्ट करेगी. मैं आपको फिर भी इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करके दिखा देता हूं कि मैं क्या सोच रहा हूं. मेरे पास इक्वेशन है Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एरो 2Cl माइनस, इसकी वैल्यू है +1.36 वोल्ट. और दूसरी इक्वेशन है मेरे पास MnO2 प्लस 4 हाइड्रोजन आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिवर्सिबल साइन Mn2 प्लस 2H2, और इसकी वैल्यू है बेटा +1.23 वोल्ट. सो हम इस इक्वेशन की एसीपी की वैल्यू क्योंकि ज्यादा है, इस इक्वेशन को हम रिडक्शन फॉर्म में एज इट इज लिखेंगे. एंड ऑब्वियसली मैं इस वाली इक्वेशन को फ्लिप करूंगा ताकि क्लोरीन Mn2 प्लस से रिएक्शन कर ले. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस्ड है, कैंसिल कीजिए. मेरी इक्वेशन ये होगी आपके पास क्लोरीन Mn2 प्लस प्लस 2H2O एरो MnO2 प्लस 2Cl माइनस प्लस 4 हाइड्रोजन आयन. सो व्हाट आई वाज सेइंग कि भाई जब क्लोरीन मैग्नीज 2 प्लस आयन से रिएक्शन करेगा MnO2 प्रोडक्ट देगा. सो वी नीड टू राइट MnO2 हियर. ठीक है.
और 1 मार्क का है तो इतनी वर्किंग करनी नहीं चाहिए, आपको डायरेक्टली कॉन्सेप्ट अप्लाई करना आना चाहिए। जैसे मैंने आपको करके दिखाया था कि इसकी मोर पॉजिटिव एसिपी की वैल्यू है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, Mn2+ को ऑक्सीडाइज करके Mn4+ आइंस में कन्वर्ट करेगा। Mn4+ की जगह उसने MnO2 दिया हुआ है, इसलिए मैं इसको ऑप्ट कर लूंगा। ठीक है, और टाइप ऑफ रिएक्शन ऑब्वियसली रीडॉक्स है, क्योंकि Mn2+ ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्लोरीन जो है वो रिड्यूस हो रहा है। नजर आ रहा है आपको कि क्लोरीन जो है वो रिड्यूस हो रहा है इनटू क्लोराइड, और Mn2+ जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है इनटू +2 से +4। सही है। So that's the end of question number 2. Let's move on to the next question. Let's see what we have in it. Um, okay. The rate of reaction between 2-chloro-2-methyl propane, that's your tertiary alkyl halide by the way, and methanol is investigated. When large excess of methanol is used, the overall reaction is first order. आप जानते हैं कि जब भी कोई चीज excess amount के अंदर होती है, हम उसकी concentration को determine नहीं कर सकते। जब उसकी concentration को determine नहीं करेंगे तो obviously उसकी वजह से rate of reaction पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब मेथनॉल की concentration in large excess है, उससे concentration का उससे rate of reaction का कोई ताल्लुक नहीं होगा। That shows कि rate of reaction depend करेगा tertiary alkyl halide पे, which is why examiner ने जो मुझे results show किए हैं ग्राफ की फॉर्म में, उसमें y एक्सिस के ऊपर टर्शियल अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन और x एक्सिस के ऊपर टाइम है, ग्राफ प्लॉट कर दिया है। वो हमसे कह रहे हैं पार्ट 1 में कि यूज द ग्राफ टू डिटरमिन द रेट ऑफ रिएक्शन एट 40 सेकंड, शो ऑल योर वर्किंग। ओके 40 सेकंड, तो 40 सेकंड जो है वो तो बेटा आइडिया से आपने मैनेज करना होगा, और कोशिश करते हैं कि हम आइडिया ले लें। 25 से 50 है तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि समवेयर अराउंड हेयर हमारा 40 होगा, 40 सेकेंड्स होगा, राइट। इट्स नॉट गोइंग टू बी एक्यूरेट बट मुझे लगता है कि ये होगा। सो मैं यहां से इस पॉइंट से ठीक है, तो बेटा मैं एक पॉइंट ये ले लेता हूं, ठीक, और मैं एक पॉइंट ये ले लेता हूं, और इन दोनों पॉइंट्स का मैं टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है बेटे, तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स का टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो बेटा मेरे पास टेंजेंट आ जाएगा 0,0.0150 एंड देन 40 सेकंड पे मैंने कंसंट्रेशन लिए 0.0075। ठीक, तो अगर मुझे यहां से ग्रेडियंट कैलकुलेट करना हो तो ये हो जाएगा 0.0075 माइनस 0.0150 डिवाइडेड बाय 40, तो हमारे पास 40 माइनस 0 इनफैक्ट, तो हमारे पास आ जाएगा 0.001875 मोल पर डीएम क्यूब सेकंड इनवर्स। एंड ऑब्वियसली गाइस ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा बिकॉज 40 सेकंड्स हर बच्चा जो है वो अपने डिफरेंट तरीके से जज कर रहा होगा। ऑलराइट, सो ये देखना पड़ेगा कि हमारा 40 सेकंड्स कहाँ पर आ रहा है। Use the graph to show that the overall reaction is first order. Explain your answer. Okay. जब फर्स्ट ऑर्डर होता है तो कांस्टेंट हाफ लाइफ शो करते हैं, राइट। तो लेट्स टॉक अबाउट द कांस्टेंट हाफ लाइफ।
इनिशियल 0.02 है, उसका हाफ लेंगे तो 0.001 आ जाएगा। ये आ गया, ये सही नहीं बना। ठीक है, ऑलराइट। तो मान लीजिए कि यहां से यहां तक आपके पास, लेट्स एज्यूम 27 मिनट्स हैं और ये आपकी फर्स्ट हाफ लाइफ है। अंदाजे से मैंने लिखा है, ये 26 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है, राइट। सेकंड देखना है, 0.001 का हाफ करेंगे। तो अगर मैं 0.001 का हाफ करूंगा तो इट्स गोइंग टू बी 0.0050, राइट। तो ये आपका यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो मैं अगर यहाँ से जज करूं, यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपका सेकंड टी हाफ है। तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 55 माइनस 27। तो 55 माइनस 27 इज गोइंग टू बी 28। तो दैट वाज क्लोज। ओके, ये मैंने अज्यूम किया, ये एग्जैक्ट एक्यूरेट हो भी नहीं सकता क्योंकि डिविजन्स दी हुई है। ठीक है, सो हम यहाँ पर लिख देंगे कि 0.002 से 0.01, 0.02 टू 0.01, 0.0200 मोल पर डीएम क्यूब टू 0.0100 मोल पर डीएम क्यूब में टाइम वॉज, यानी फर्स्ट हाफ लाइफ थी हमारे पास 27 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली। सिमिलरली हमने जब 0.001 मोल पर डीएम क्यूब से 0.0050 लिया, 0.0050 मोल पर डीएम क्यूब लिया, तो हमारे पास सेकेंड हाफ लाइफ हो गई 28 मिनट्स फ्रॉम अबव डेटा, almost constant half life is obtained. ठीक है, now in the next part, in a different reaction which is also a first order reaction, 75% of the reactant is consumed in 320 seconds. Calculate the rate constant K for this reaction, state the units for K. Okay. Thing is कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि अगर लेट सपोज 100% थी तो फर्स्ट हाफ लाइफ के अंदर 50% कंज्यूम हो गई होगी और फिर सेकेंड हाफ लाइफ के अंदर फर्दर हाफ कंज्यूम हो गई होगी। और सही है, दैट्स हाउ 75% कंज्यूम इन द इन अनदर डिफरेंट रिएक्शन। तो हमारे पास 320 सेकेंड्स हैं, राइट। इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 160 सेकेंड। तो ये मेरी फर्स्ट हाफ लाइफ है, फर्स्ट हाफ लाइफ है 160 सेकेंड्स। मैंने आपको पढ़ाते हुए एक फॉर्मूला बताया कि टी हाफ इक्वल्स टू 0.6 टू 0.62 not 6 0.6 oops 0.6
माय बैड, 0.693 डिवाइडेड बाय के। ये जो 0.693 है ये बेसिकली ln2 होता है। हम ln2 की वैल्यू को अगर कैलकुलेटर पे लेंगे तो 0.693 आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे फर्स्ट हाफ लाइफ पता है, ये हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय 160। तो हमारे पास आंसर आएगा 0.693 divided by 160. So it's going to be 4.33 into 10 to the power minus 3. तो ये हो जाएगा 4.33 into 10 to the power minus 3। यूनिट्स निकालने, यूनिट बहुत आसान है क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है, इसलिए सेकंड इनवर्स इज द यूनिट। ठीक है, ये जो फॉर्मूला होता है ये हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूज करते हैं, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए के की यूनिट हमेशा क्या होती है, सेकंड इनवर्स। राइट भाई, ये क्या चीज है आपके पास, सेकंड, ये वन, तो 1/2 इज बेसिकली सेकंड इनवर्स। ऐसे भी सोच सकते हो बात को। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज define standard electrode potential E naught. Okay, that's an easy point. The potential difference when the test electrode का मतलब जिस हाफ सेल को हम डिटरमिन करना चाह रहे हो, when the test electrode is attached to the standard hydrogen electrode under standard condition, और स्टैंडर्ड कंडीशन क्या आती है अगर आपको याद हो, 298 केल्विन, 1 atm pressure, and for electrolyte must be 1 mole per dm cube। शो कर दिया मैंने। ठीक है, state the function of the salt bridge, explain your answer। salt bridge electrical neutrality को balance करता है in both the half cell। salt bridge maintain the electrical neutrality। electrical neutrality का मतलब charge balancing। electrical neutrality in both half cell। also it completes the circuit। ये भी हमने आपको बताया तो हम लिख देते हैं, also it completes the internal circuit। ठीक है, complete the diagram of the apparatus that can be used to measure the E naught of the dichromate 6 signs electrode against the standard hydrogen electrode। Okay, your diagram should be fully labeled to identify the apparatus, substances, and conditions। Okay, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम यहां बनाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। This is going to be a standard hydrogen electrode, and let's label that। हम यहां से
हाइड्रोजन गैस को इंट्रोड्यूस करेंगे 1 atm प्रेशर अंडर 298 केल्विन। ये आपका प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है which is coated with platinum black if you remember। ये आपका हाइड्रोजन आयन होगा जिसकी कंसंट्रेशन एग्जैक्टली 1 मोल पर डीएम क्यूब ली जाएगी। तो मैंने कैपिटल 1m कर दिया है, 1m का मतलब 1 मोलर। ये आपका वोल्ट मीटर आ गया which is also called potentiometer and obviously अब हमारे पास आएगा डाइक्रोमेट 6 आयंस और उसके लिए हमारे पास ये आ गया। तो ये आपका है प्लैटिनम इलेक्ट्रोड और ये आपका है डाइक्रोमेट 6 आयंस का सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन 1 मोल पर डीएम क्यूब रखूंगा। हाइड्रोजन आयन क्वेश्चन के अंदर इंस्ट्रक्ट किया एग्जामिनर ने, इसकी भी कंसंट्रेशन 1 मोल पर डीएम क्यूब रखूंगा। क्रोमियम 3 आयन भी इंस्ट्रक्ट किया एग्जामिनर ने, उसकी भी कंसंट्रेशन 1 मोल पर डीएम क्यूब रखूंगा। ठीक है, एंड ऑब्वियसली बीच में सॉल्ट ब्रिज है हमारे पास। आप सब जानते हैं कि ये मोर पॉजिटिव वैल्यू है इसलिए ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये नेगेटिव वैल्यू, ये नेगेटिव टर्मिनल। ये आपका नेगेटिव हाफ सेल है, ये आपका पॉजिटिव हाफ सेल है और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इन द एक्सटर्नल सर्किट ऑलवेज गो फ्रॉम नेगेटिव हाफ सेल टू पॉजिटिव हाफ सेल। ओके, आई होप यू रिमेंबर ऑल दिस। The E naught of dichromate 6 science chromium 3 plus science electrode is plus 1.33 volt. Label the negative electrode and the direction of electron flow in the external circuit when the current flows in your diagram in C3. That's what I have done. सही है। हाइड्रोजन की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, क्रोमियम की वैल्यू दी हुई है उसने प्लस 1.33। तो जो मोर पॉजिटिव एसीपी वैल्यू होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, वो पॉजिटिव हाफ सेल होता है। जो लेस एसीपी नेगेटिव की वैल्यू होती है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है, वो नेगेटिव हाफ सेल होता है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव हाफ सेल होता है इन द एक्सटर्नल सर्किट। ठीक है, ओके, डी पार्ट 1। Table 3.1 list relevant electrode potentials for some electrodes, reactions for use in D part 1 and D part 2. Ethanol is oxidized to ethanoic acid in the presence of dichromate 6 ions. Construct the ionic equation for the oxidation of ethanol to ethanoic acid using dichromate 6 ions in acidic condition. Calculate the E naught cell for this reaction. Okay. ओके, काम कुछ इस तरह से करना है, मैं समझा देता हूँ। एक तो आपको डाइक्रोमेट 6 आयंस वाली इक्वेशन लेनी है, यानी आपको एक इक्वेशन ये ऑप्ट करनी है, और फिर इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बना रहे हैं। तो आप नोट करें इथेनॉल से इथेनोइक एसिड कौन सी इक्वेशन में है, ये इथेनॉल है और ये इथेनोइक एसिड है, इसका मतलब मैं इस इक्वेशन को यूज करूंगा। अब आप सब जानते हैं कि ये मोर पॉजिटिव एसीपी वैल्यू है, इस इक्वेशन को मैं एज इट इज रखूंगा, इस इक्वेशन को मैं फ्लिप करके लिखूंगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने के लिए इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। दैट्स अ लॉट ऑफ वर्किंग, राइट? सो लेट्स डू दिस वर्किंग और हम साइक्ली अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। हम डाइक्रोमेट 6 आयंस की जो इक्वेशन है उसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं क्योंकि उसकी पोटेंशियल वैल्यू मोर पॉजिटिव है। ये हो जाएगा 14 हाइड्रोजन आयंस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, रिवर्सिबल साइन, 2 क्रोमियम 3 प्लस प्लस 7H2। और इस इक्वेशन को मैं अब फ्लिप करके लिखूंगा क्योंकि ये लेस पॉजिटिव है। तो ये हो जाएगा इथेनॉल प्लस H2O, रिवर्सिबल साइन, इथेनोइक एसिड प्लस 2 हाइड्रोजन आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, राइट?
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस होकर कैंसिल होंगे, ऑब्वियसली ये हाइड्रोजन आयन इन हाइड्रोजन आयन से कैंसिल होंगे, ये वाटर इस वाटर से कैंसिल होंगे, तो फाइनल इक्वेशन डायरेक्टली मैं यहाँ लिख दूं Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 8 हाइड्रोजन आयंस बेटा 6 हाइड्रोजन आयंस कैंसिल हो गए 14 हाइड्रोजन आयंस के साथ, तो रिमेनिंग हाइड्रोजन आयंस 8 होंगे प्लस 8 हाइड्रोजन आयंस प्लस 3 मोल्स ऑफ इथेनॉल एरो 3 moles of ethanoic acid plus 3 water 7 water से cancel होंगे तो 2 chromium 3 plus as it is and 4 H2O will remain. ठीक है, हमने यहाँ से E नॉट सेल निकालनी है, तो E नॉट सेल निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे E नॉट राइट माइनस E नॉट लेफ्ट का। E नॉट राइट में हमेशा मोर पॉजिटिव एसिपी वैल्यू आती है, उसकी वैल्यू को एज इट इज प्लग इन करेंगे, E नॉट लेफ्ट में लेस नेगेटिव, और जो वैल्यू है उसको एज इट इज प्लग इन करो, तो यहाँ से आपके पास E नॉट सेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लेट मी कैलकुलेट 1.33 प्लस 0.94, तो बेटा यहाँ से जो वैल्यू मेरे पास आ रही है वो 2.27 वोल्ट है, प्लस 2.27 वोल्ट, तो हम यहाँ लिख देते हैं प्लस 2.27 वोल्ट। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं इन एन इथेनॉल ऑक्सीजन फ्यूल सेल, ये आ गया, in contact with two inert electrodes immersed in acidic solution, the cell reaction for the oxidation of ethanol by oxygen is shown. ठीक है, मुझे E नॉट सेल की वैल्यू गिवन है, कैलकुलेट डेल्टा G नॉट in kilojoules per mole for the oxidation of ethanol. Okay, so E नॉट सेल is given, हमें एक फॉर्मूला आपको मैंने पढ़ाया था, गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशनशिप है, and that relationship was delta G naught equals to minus NF E naught cell, ठीक है, equals to minus N। N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ वी नीड टू डिसाइड कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, ठीक है, और हमें पता कैसे चलेगा, इथेनॉल से इथेनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो नोट करें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अंडर एसिडिक मीडियम, इक्वेशन ये है और इस इक्वेशन में 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, तो मैंने आपको कहा था कि जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं और वही एन की वैल्यू होती है, तो आप नोट करें वो कह रहा है ऑक्सीजन आर इन कॉन्टेक्ट विद 2 इलेक्ट्रोड्स इमर्स्ड इन एन एसिडिक सॉल्यूशन, इसका मतलब ऑक्सीजन है, इसका मतलब एसिडिक सॉल्यूशन है, इसका मतलब आपको एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है जिसमें ऑक्सीजन भी हो, हाइड्रोजन आयन भी हो, ऑब्वियसली उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, प्लस 1.23 वोल्ट, राइट। इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन हो रहे हैं, ऑब्वियसली ड्यूरिंग द रिएक्शन 4 इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब भी होंगे, लूज भी होंगे, तो एन की वैल्यू को मैं 4 ले लेता हूँ, फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है 96500। ई नॉट सेल की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है बच्चों आप लोगों को, ये है आपके पास प्लस 2.01 वोल्ट, ठीक है, तो ये वैल्यू यहां से बनेगी -775,860 जूल्स मोल इनवर्स, राइट। अगर मैं इसको किलो जूल्स में कन्वर्ट करूंगा क्योंकि डेल्टा जी नॉट किलो जूल्स में होती है, तो ये हो जाएगा -776 किलो जूल्स पर मोल। क्योंकि एग्जामिनर ने मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर दिया, इसलिए मैंने भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर रखा है, ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे -776 किलो जूल्स पर मोल। Question number 4, the 3d orbitals in an isolated Fe2 plus ions are degenerate। degenerate का मतलब equal energy orbitals, right। degenerate का मतलब क्या होता है, equal energy।
ठीक है। अब फिर वो आपसे कह रहे हैं Fe2+ आयंस। सो Fe2+ आयंस की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो है आर्गॉन 18 and 3d6 4s0। ठीक है। वो कह रहे हैं आपसे complete the diagram to show the splitting of the 3d orbital energy levels in an isolated Fe2+ ions and Fe2+ forms an octahedral complex। ठीक है। तो बेटा आइसोलेटेड सिस्टम में तो डी जनरेट होते हैं, सबकी एनर्जी इक्वल होती है। 2, 3, 4 and 5। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है तो आप जानते हैं एक बनता है T2G विच हैज 3 ऑर्बिटल, जिसमें dx होता है, dxy होता है, dxz होता है, dyz होता है। ठीक है। और एक होता है हायर एनर्जी Eg ऑर्बिटल विच हैज 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। एक होता है dx² -y² एंड देन dz²। ये dxy, dxz, dyz, dx² -y² dz²। अकॉर्डिंग टू माय लेक्चर ये लोअर एनर्जी होता है और इसको हम T2G से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हायर एनर्जी होता है और इसको हम Eg से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। हमने ऑक्टाहेड्रल की भी की है, हमने टेट्राहेड्रल की भी की है। एग्जामिनर ने सिर्फ ऑक्टाहेड्रल पूछा है तो हमने सिर्फ ऑक्टाहेड्रल को मेंशन किया है। ठीक है। और अगर आपको याद हो, मैंने एक इंफॉर्मेशन और भी शेयर की थी। मैंने ये कहा था कि इन दोनों के दरमियान जो एनर्जी का गैप होता है, दैट एनर्जी का गैप इज ऑलवेज इक्वल्स टू HF। और इस एनर्जी को हमने क्या नाम दिया था? स्प्लिटिंग एनर्जी, इफ यू रिमेम्बर। ठीक है। और ऑब्वियसली ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है ये इनकी एनर्जी से ज्यादा होती है। Bipyridine by P is a bidentate ligand। Bidentate ligand का मतलब donates two lone pair। Explain what is mean by bidentate ligand। तो बेटा ये तो हमने क्लास में भी किया है कि ligands donate two lone pairs to the transition metal ion। Ligands donates two lone pair to the transition metal ion so that two dative bonds are formed। ओके। देन फिर आपके पास है the complex this exists as two stereoisomers। Complete the three-dimensional diagram to show the two stereoisomers of this। State the type of stereoisomerism shown used to represent BiP in your diagram। ठीक है। ओके। ये डॉटेड लाइन होगा एंड ऑब्वियसली ये हमारा पिरामिड होगा। ये भी डॉटेड लाइन और ये हमारा होगा पिरामिड। ठीक। ये हमारा नाइट्रोजन है, ये भी हमारा नाइट्रोजन है। ये इस तरह से, ये इस तरह से, और ये आया। ये भी नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन है, ये आएगा। ये भी नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन है, और ये आएगा। ठीक है।
और जाहिर सी बात है हम इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो वो मिरर इमेज ये बनेगा हमारे पास। तो हमने क्लास में आपको यही कहा था कि अगर 3 बाइडेंटेट लाइगेंड्स हों तो हमेशा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मिलेगा, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमेशा मिरर इमेजेस देखे जाएंगे। सो ये हमारे मिरर इमेजेस हो गए। तो टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके। Standard electrode potentials can be used to compare the stability of different complex ions for a given transition element. List of electrode potential for some electrode reactions system. Use relevant data from table 4.1 to state which iron 3 complex is hardest to reduce. Explain your choice. Um, mm, 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 mm. जिसकी ई नॉट वैल्यू सबसे कम होगी उसको रिड्यूस करना सबसे मुश्किल होगा, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। सही है, बात समझ में आ रही? हार्डेस्ट टू रिड्यूस कह रहा है, जबकि ये क्या है? लेस पॉजिटिव। अकॉर्डिंग टू माय लेक्चर अगर लेस पॉजिटिव है तो इसका मतलब कैन नॉट रिड्यूस, ड्यूरिंग द रिएक्शन इट विल ऑक्सीडाइज। ड्यूरिंग द रिएक्शन इट विल ऑक्सीडाइज। ठीक है, सो कौन सा कॉम्प्लेक्स लिखेंगे हम? FeCN6 3 ठीक है जी। और एक्सप्लेनेशन क्या है? एक्सप्लेनेशन ये है, as the E naught value is less positive, इसका मतलब इक्विलिब्रियम जो वो बैकवर्ड जा रहा होगा। which means equilibrium favors towards backward, क्योंकि ऑक्सीडाइज को प्रमोट कर रहा होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर रहा होगा, बिकॉज इट promotes oxidation। ठीक है, in the next part the ligand bipyridine consists of 2 pyridine rings, pyridine C6H5, sorry C5H5N, and benzene C6H6 have similar planar cyclic structure. By reference to the hybridization of the carbon atom and the nitrogen atom and orbital overlap suggest how the sigma and pi bonds are formed in a pyridine molecule. Beta sigma bonds are always formed through head-to-head overlapping of orbital. That's what we have done in AS. Sigma bond is always formed through head-to-head or head-on overlapping of orbital. ठीक है, pi bond is always formed through sidewise overlapping of p orbital.
through sidewise overlapping of orbital. ठीक है, अब वो हमसे हाइब्रिडाइजेशन भी पूछ रहे हैं कार्बन की और नाइट्रोजन की। तो मैंने आपको कहा हुआ है, मैंने पढ़ाया भी है कि जब डबल बॉन्डेड कार्बन एटम होता है तो ऑब्वियसली sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। सो डबल बॉन्डेड कार्बन हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नाइट्रोजन की भी पूछ रहे हैं, सो नाइट्रोजन से रिलेटेड बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन का एक बॉन्ड ये है, दूसरा बॉन्ड ये है और एक लोन पेयर है। तो नाइट्रोजन के पास 2 बॉन्ड्स हैं और एक लोन पेयर्स हैं। टोटल कितना हो जाएगा? 3। 3 का मतलब क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी इसकी? sp2। और जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है तो एंगल हमारे पास 120 117 से 117.5 डिग्री से 120 डिग्री एंगल होता है, राइट? दैट्स व्हाट वी हैव डन इन एएस क्लास, सो दैट्स रेलेवेंट टू एएस स्टफ। सो हम यहाँ लिख देते हैं nitrogen also has sp2 hybridization. ठीक है, फिर वो कह रहे हैं pyridine reacts with chlorine in the presence of AlCl3 shown in this. Okay, the mechanism of this reaction is similar to that of chlorination of benzene. AlCl3 reacts with chlorine to generate an electrophile Cl+. Complete the diagram to show the mechanism for the reaction of pyridine with Cl+. Include all relevant charges, dipoles, lone pairs of electrons, and curly arrows as appropriate. So it's quite simple कि भाई हम इसको इस तरह से रिएक्शन करके दिखाएं। So basically मैं यहाँ पर रिएक्शन करूंगा कि ये इससे रिएक्शन करेगा एंड ऑब्वियसली पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा, और जब पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा ये नाइट्रोजन आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब जब पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा तो जाहिर सी बात है इस क्लोरीन के साथ और इस हाइड्रोजन के साथ एक आपने वो बना लिया, और इसको छोड़ के बाकी जितनी कार्बन एटम्स हैं उन सब के ऊपर प्लस चार्ज। अब जाहिर सी बात है शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, तो आपके पास प्रोडक्ट ये आ जाएगी। सही है, और यहां से हाइड्रोजन आयन रिमूव हो जाएगा, उसको शो करेंगे। ऑलराइट, let's move on to the next question, question number 5. Compare the relative acidities of benzoic acid, phenylmethanol, phenylmethanol and phenol. Explain your reasoning. So आप सब जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, उससे वीक फिनोल होगा, और सबसे वीक जो है वो अल्कोहल होगा। ऑलराइट, बिकॉज अल्कोहल्स आर न्यूट्रल। तो मोस्ट एसिडिक में बेंजोइक एसिड लिख देते हैं, उसके बाद फिनोल लिखते हैं, उसके बाद फिनाइल मिथेनॉल लिखते हैं, ओके। बेंजोइक एसिड क्यों है? इसलिए क्योंकि बेंजोइक एसिड में नेगेटिव चार्ज ऑसिलेट होता है ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, दिस मेक्स द बेंजोइट आयन मोर स्टेबल। नेगेटिव चार्ज is only oscillating on more electronegative oxygen atoms. This makes
benzoate ions most stable, benzoate ions most stable, ठीक है। ऑल्सो जो बेंजोइक एसिड का COH होता है उसका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट होता है हैज नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट भी कहते हैं। इन फिनोल lone pair of oxygen is delocalized with the pi bond of benzene so phen oxide ions technically less stable हो जाते हैं। In phenyl methanol पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है जिसकी वजह से हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन पॉसिबल नहीं होती। ड्यू टू पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट OH बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है and cannot ionize। वो कह रहे हैं आपसे a series of 9 separate experiment is carried out as shown in table 5.1। Complete the table by placing a tick in the relevant box if a reaction occurs, place a cross in the box if no reaction occurs। बेंजोइक एसिड के साथ रिएक्शन होगा, NaOH के साथ रिएक्शन होगा, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगा, इसके साथ रिएक्शन होगा फिनाइल मेथनॉल का सोडियम के साथ, लेकिन इन दोनों के साथ नहीं होगा। फिनोल का सोडियम के साथ भी होगा, NaOH के साथ भी होगा, लेकिन सोडियम कार्बोनेट के साथ नहीं होगा। और ये हमने क्लास में किया हुआ है, क्योंकि बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट होता है इसलिए वो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है, फिनोल नहीं करता बिकॉज फिनोल इज वीकर देन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, फिर है आपके पास benzoyl chloride can be synthesized by the reaction of benzoic acid with either BCl5 or SOCl2। Complete the equation for this reaction। So ये तो हमने क्लास में भी किया भाई, ये HCl बनेगा, इसके मिस्टी फ्यूम्स बनेंगे और ये बनेगा POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो अगेन HCl बनेगा प्लस SO2 भी बनेगा साथ में। ठीक है, use your answer to C1 to suggest why it is easier to isolate in a pure form the ethynyl chloride from reaction 2 compared to reaction 1। okay। देखें, उसकी रीजन ये है कि ये भी गैस है आपके पास और ये भी गैस है, तो क्योंकि ये दोनों गैसेस हैं आपकी प्रोडक्ट, इसलिए यहां से प्योर फॉर्म में इसको आइसोलेट करना आसान होगा। सही है, दैट्स द ओनली रीजन आई बिलीव वी हैव। तो आप बताइए, इन रिएक्शन 2
both sulfur dioxide and HCl exist in gaseous state. So liquid benzoyl chloride can easily isolate. ठीक है. Next part of the question is benzoyl chloride is hydrolyzed by water at room temperature to form benzoic acid. Complete the diagram to show the mechanism of the reaction between benzoyl chloride and water. Include charges, dipoles, lone pairs, electrons, curly arrows as appropriate. That's what we have done in the class. Oxygen has slight negative charge, chlorine has slight negative charge because both of them are more electronegative element. So carbonyl carbon has slight positive charge, right? This oxygen has lone pair. ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा. एट द सेम टाइम ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा जिसके नतीजे में ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा. तो सिचुएशन ये बनेगी आपके पास. ये हो जाएगा CO नेगेटिव, ये आपका Cl आ गया, ये आपका डेटिव बॉन्ड बना और ये वाटर के दोनों हाइड्रोजन. एंड सिंस ऑक्सीजन हैज 3 बॉन्ड उसके ऊपर प्लस चार्ज. अब क्या होगा कि ये वापस यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, क्लोराइड यहाँ से रिमूव होगा, ये क्लोराइड इस H से रिएक्शन करके HCl की प्रोडक्ट बनाएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा ताकि इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाए. एंड दैट्स हाउ द प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड. अब आपसे वो पूछ रहा है कि मैकेनिज्म बताओ. ठीक है, तो मैकेनिज्म तो आप बता सकते हैं बहुत आराम से. देखो, एज एक न्यूक्लियोफाइल एज वाटर रिएक्ट कर रहा है और क्लोरीन एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ से जा रहा है, तो इसका मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. मैंने क्लास में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाया है. हम यहाँ पर एक चीज और भी कह सकते हैं, आप नोट करें, यहाँ से H और यहाँ से Cl दोनों जा रहे हैं. HCl की एलिमिनेशन हो रही है तो मैं एलिमिनेशन भी कह सकता हूँ. ठीक है, हम इसको डीहाइड्रोहेलोजिनेशन भी कह सकते हैं बिकॉज रिमूवल ऑफ HCl इज द सेम थिंग. बट बेस्ट जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिकॉज वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट कर रहा है, क्लोरीन एज अ न्यूक्लियोफाइल जा रहा है. तो एक इलेक्ट्रोफाइल आता है, एक न्यूक्लियोफाइल आता है, उसकी जगह पे दूसरा न्यूक्लियोफाइल चला जाता है, उसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज acyl chlorides, my goodness, react with sodium carboxylate to form acid anhydride as shown in figure. The condensation polymers polyanhydride and polyester are formed by similar method. The repeat unit for polyanhydride is shown in figure 5.2. ठीक है, use figure 5.2 and 5.1 to suggest the structures of the two monomers used to make this polyanhydride. तो बेटा आप नोट करो, आपके पास एस्टर का बॉन्ड बना है, तो मैं बॉन्ड यहां से ब्रेक करूं, तो मैं बॉन्ड यहां से ब्रेक करता हूं. एस्टर का बॉन्ड ब्रेक करते हैं ना, ये वाला एस्टर का भी बॉन्ड ब्रेक कर दो. अब आप जानते हैं, आपने पढ़ा है मुझसे, मैंने पढ़ा है, कॉन्सेप्ट बताया कि CO विल गेट OH ऑफ वाटर. याद आया? तो इसका मतलब ये वाला CO भी OH ऑफ वाटर लेगा और ये वाला CO भी OH ऑफ वाटर लेगा. सही. मैंने ये बताया था कि H विल गेट हाइड्रोजन ऑफ वाटर. यही कॉन्सेप्ट आपके रजिस्टर में भी लिखा हुआ है. और ये क्या है? ओके, और ये क्या हासिल करेगा? OH ऑफ वाटर.
So on the basis of that, मैं 2 monomers बता देता हूँ. Wait. Uh, that's the problem. कि वो हमसे monomers पूछ रहा है. What I've done here, let me check. Okay, let's do one thing. कि ये एस्टर यहाँ पर भी और ये एस्टर यहाँ पर भी है, तो हम यहाँ से ब्रेक कर लें अगर एस्टर को, तो हमारे लिए ज्यादा आसानी हो जाएगी, राइट? तो अगर यहाँ से एस्टर को ब्रेक कर रहे हैं, oh fine, see, they didn't ask the basically, let me, my bad, sorry, he didn't ask the hydrolysis product, he just asked कि भाई ये जो पॉलीमर बना है इसके मोनोमर क्या है, और उसने मुझे इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी कि पॉलीमर्स जो हैं वो बनते हैं एसाइल क्लोराइड और सोडियम कार्बोक्सिलेट से. सो आई नीड टू मेक दीज टू monomers. I need to make these two monomers as it is. I'm not talking about the hydrolysis. He's not talking about the hydrolysis. So that was the mistake, which is why I was stuck a little bit. But I've got the logic. कि बॉन्ड यहां से ब्रेक करोगे, राइट, और बॉन्ड यहां से ब्रेक करोगे, ऑब्वियसली ये कन्वर्ट, इट विल टेक Cl, विल गेट Cl एसाइल क्लोराइड में कन्वर्ट होने के लिए. ये भी आपको क्या मिलेगा? Cl. सो मेरी पहली प्रोडक्ट क्या बनेगी आपके पास, ये देख लो आप. ये है आपके पास CO, फिर आपके पास CH2, फिर आपके पास CH2, फिर आपके पास CH2, एंड देन फिर आपके पास है CO, राइट? तो एक क्लोरीन यहां पर आएगा और एक क्लोरीन जो है वो यहां पर आएगा. ये मेरी पहली प्रोडक्ट होगी. एंड ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा क्या बनेगा? सोडियम कार्बोक्सिलेट. यानी यहां पर भी सोडियम लिखा जाएगा और यहां पर भी सोडियम का कार्बोक्सिलेट बनेगा. तो मैं इस पूरी डायग्राम को कुछ इस तरह से लिख सकता हूं. दैट्स अ ह्यूज डायग्राम बाय द वे. दिस इज CO. ये तो एग्जामिनर ने हमें पहले से दी हुई है, ठीक है. इसके साथ O नेगेटिव और Na पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि सोडियम कार्बोक्सिलेट ले रहा है, सॉल्ट. My goodness, that's the huge structure, and it's very difficult to fix it in this little space. So let's try. This is CH2, this is CH2, this is CH2. Okay, and this is O. This is benzene ring. Okay, I can fix it, I believe. And this is COO, and it's going to be Na. Okay, that's the whole scenario. Polyanhydrides are biodegradable polymers. Suggest how this polyanhydride can be degraded. So जाहिर सी बात है, ये एक एस्टर है, इसको मैं हाइड्रोलाइज कर सकता हूँ. In the presence of acidic or alkaline medium. Hydrolysis in the presence of acid or alkali under heat. ठीक है. Now the next question is, describe what is mean by racemic mixture. That was
That's what we have done in A1, right? So you guys need to revise the optical isomerism from A1, और वो पूरा का पूरा आपको रिवाइज करना भी चाहिए। रेसिपी मिक्सचर मैंने बताया था 50% डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर्स होते हैं और 50% लेवर रोटेटरी आइसोमर्स होते हैं। सो इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर अगर ऑप्टिकल आइसोमर्स एग्जिस्ट करें तो उसको हम रेसिपी मिक्सचर कहते हैं। इफ optical isomers exist in equal proportion, that is 50% plus D and 50% minus L, dextrorotatory plus D, levorotatory minus L। वो कह रहे हैं आपसे asparagine is an amino acid that contains chiral carbon atom and displays a stereoisomerism. Separate sample of asparagine are dissolved in CdCl3 and analyzed using carbon-13 and proton NMR spectroscopy. Predict the number of peaks seen in the carbon-13 proton NMR spectra of asparagine. carbon-13 के लिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले carbon-13 के लिए एक पीक ये है हमारे पास, ये सेकंड पीक है, ये थर्ड पीक है और ये फोर्थ पीक है। तो बेसिकली हमारे पास 4 पीक्स हैं carbon-13 के लिए, राइट। लेट्स टॉक अबाउट प्रोटॉन एनएमआर। तो प्रोटॉन एनएमआर के लिए हमारे पास है, ये फर्स्ट प्रोटॉन होगा जिससे रिलेटेड हमें मिलेगी, ये सेकंड प्रोटॉन होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ प्रोटॉन होगा और ये फिफ्थ होगा। तो हमारे पास 5 प्रोटॉन्स की इन्वायरमेंट्स है, वो हमें 5 पीस देगा, ठीक है। The isoelectric point of asparagine represented by ASN, pH is 5.4. Describe the meaning of the term isoelectric point. एक ऐसी pH जिसके ऊपर अमीनो एसिड्स जो हैं वो as a zwitterine exist करें। The pH at which amino acid exist as zwitterine, मतलब कोई नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज ना हो, सही है। That is no net electrical charge। फिर वो कह रहे हैं ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एस्पैरागिन एट pH 1। सो मैंने आपसे ये कहा था कि pH 1 है और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ एस्पैरागिन 5.4 है, सही है। तो ऑब्वियसली जो एस्पैरागिन है वो इस एसिडिक मीडियम के अंदर प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। तो हम यहाँ लिख देंगे एसिडिक मीडियम है, सो एसिडिक मीडियम कंटेन हाइड्रोजन आयन, सो NH2 जो होगा ऑफ एस्पैरागिन एक्सेप्ट प्रोटॉन्स। ये कॉन्सेप्ट लगेगा और यही हमने क्लास में भी बताया है। सो एस्पैरागिन का स्ट्रक्चर, माय गुडनेस, दैट्स द ट्रिकीएस्ट स्ट्रक्चर, that is CO, my goodness, CO NH2, उसके बाद है आपके पास CH2, देन फिर आपके पास है CH, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और प्रोटॉन एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो जाएगा NH3 प्लस में। देन फिर आपके पास है COOH। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बच्चे करते हैं और वो क्वेश्चन ये करते हैं कि सर ठीक है, इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, ये भी तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करना चाहिए था, इसको क्यों नहीं किया आपने, इसको क्यों नहीं किया, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई
ये एक्चुअली एमाइन नहीं है, अगर आप टेक्निकली देखें तो ये एमाइड है। और एमाइड्स जो होते हैं, ये टेक्निकली क्या चीज है आपका? एमाइड। दिस इज योर एमाइड फंक्शनल ग्रुप, राइट? और एमाइड्स जो हैं, मैंने क्लास में बताया, न्यूट्रल होते हैं। ना वो एसिड से रिएक्शन करते हैं, ना वो एल्कली से। और न्यूट्रल क्यों होते हैं? क्योंकि जो नाइट्रोजन की लोन पेयर होती है वो डीलोकलाइज हो जाती है पाई बॉन्ड ऑफ ऑक्सीजन के साथ, राइट? आई होप इट मेक्स सेंस टू यू, आई होप यू रिमेंबर दिस पॉइंट। एमाइड्स आर न्यूट्रल। क्योंकि एमाइड्स न्यूट्रल होते हैं इसलिए मैंने इस NH2 को बिल्कुल भी H प्लस आइन से इंटरेक्ट नहीं करवाया, एज इट इज छोड़ दिया। फिर वो कह रहे हैं एस्पैरागिन कैन पॉलीमराइज टू फॉर्म पॉलीएस्पैरागिन, draw structure of polyasparagine showing two repeating units, the peptide linkage should be shown displayed. Okay, तो एस्पैरागिन आपस में रिएक्शन करके पॉलीमर बनाएंगे। अब एस्पैरागिन के स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। देखो पहली पॉसिबिलिटी, अमाइड्स तो न्यूट्रल होते हैं, ये तो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो पहली पॉसिबिलिटी, मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि एस्पैरागिन का ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, एस्पैरागिन का जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा उसके NH2 से रिएक्शन करे। सो हम बना लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, तो पहला स्ट्रक्चर तो हम एज इट इज लिखते हैं, दिस इज CONH2, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। फिर है हमारे पास CH2, फिर है हमारे पास CHNH2, सही है। फिर है हमारे पास CO। अब हम इसको अटैच करेंगे दूसरे एस्पैरागिन के NH2 के साथ, तो ये आ गया NH। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। इस NH के साथ क्या लगा हुआ है? CH लगा हुआ है। CH के साथ क्या लिखा हुआ है? NH2, उसको मैंने एज इट इज लिखा। फिर क्या लिखा हुआ है? CH2। फिर क्या लिखा हुआ है? CONH2। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। आई होप आपको ये बनाना आया हो, मैंने डायरेक्ट बना दिया है बिकॉज आई होप कि आपको पता हो कि भाई हम NH, देखो फर्स्ट ये था ना, इसका OH लिया और दूसरे वाले का जो H है वो यहां से लिया। बाकी सारी चीजें एज इट इज रखी है मैंने, ठीक है? बाकी सारी चीजें एज इट इज रखी है मैंने, उसको कोई चेंज नहीं किया। Okay. Now the next is isoelectric point of lysine LYS, pH is 9.8. वो कह रहे हैं a mixture of the dipeptide and its two constituent amino acid asparagine and lysine is analyzed by electrophoresis using a buffer at pH 5. Okay. मैंने क्लास में बताया था कि आपके पास बफर की पीएच अगर कम हो अमीनो एसिड की पीएच से, तो प्रोटोनेशन हो जाती है, राइट? तो इसका मतलब जो लाइसिन है वो भी प्रोटोनेट होगा, और जो एस्पैरागिन है वो भी प्रोटोनेट होना चाहिए। 5.4 है और यहाँ 5.0 है। ओके, तो एस्पैरागिन को वो न्यूट्रल ले लेगा आई बिलीव, बिकॉज 5.4 को राउंड ऑफ करोगे तो वो 5.0 ही बनेगा। तो आई थिंक एस्पैरागिन नहीं ले रहा वो न्यूट्रल, बिकॉज वो कह रहा है कि रिएक्शन हो रहा है समवॉट, बिकॉज सारे के सारे अमीनो एसिड्स जो हैं वो उसने डिफ्लेक्ट करवाएं टुवर्ड्स नेगेटिव। इसका मतलब ऑल ऑफ देम एग्जिस्ट एज कैटाइन, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट दैट स्लोली एंड ग्रेजुअली। पहले मैं एस्पैरागिन का स्ट्रक्चर जो है दोबारा से कॉपी कर लूं, बिकॉज मुझे उसकी जरूरत है। एस्पैरागिन के स्ट्रक्चर की मुझे जरूरत है। लेट मी कॉपी दिस स्ट्रक्चर ताकि हम उसको आगे यूज कर लें। ओके, ये तो हो गया हमारा एस्पैरागिन। यहां रखते हैं इसको। चलिए, ये हमारा एस्पैरागिन हो गया। यहाँ लिख देते हैं कि जनाब ये एस्पैरागिन है, ठीक। और इसकी पीएच की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 5.4, सही है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की पीएच की वैल्यू थी 5.4। इसका मतलब इसका मतलब प्रोटोनेट तो होगा किसी हद तक,
सो देखें, जब लाइसीन प्रोटोनेशन में जाएगा अंडर दिस, तो ये कन्वर्ट होगा NH3+ में, CH2 taken 4 as it is, CH COOH as it is, और ये हो जाएगा NH3+ में। ओवरऑल चार्ज कितना है इसका? 2। ठीक है। एस्पेरेजिन जो है, अगर आप उसको भी प्रोटोनेट करवाएंगे तो ये अमाइड तो न्यूट्रल है, एज इट इज रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। ये CH है और ये हो जाएगा NH3+, और ये हो जाएगा COOH। इसका ओवरऑल चार्ज कितना होगा? +1। सही है। माय गुडनेस। सो सबसे ज्यादा चार्ज जो है वो इस वक्त लाइसीन का है। इसका मतलब जो G है वो लाइसीन होना चाहिए। सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा। जो F है वो एस्पेरेजिन और उसके दरमियान कंपटीशन है। तो F जो है वो तुम्हारा डाइपेप्टाइड है, दैट इज लाइसीन एंड ASN, जबकि E जो है वो तुम्हारा एस्पेरेजिन है। और एस्पेरेजिन इसलिए है क्योंकि आप समझ लीजिए कि वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल कंसिडर कर रहा है उसको। ठीक है, क्योंकि 5.4 और 5.0 इज ऑलमोस्ट न्यूट्रल। ठीक है, बट मैं एस्पेराजिन को उसने ASN से रिप्रेजेंट किया, तो मैं ASN लिख देता हूँ। बट मैं इस चले सो हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं कि लाइसीन has 2 positive charge, so it will deflect most. Towards negative terminal. ठीक है, देन फिर आपके पास से एस्पेराजिन has +1 charge, deflect towards negative terminal, but due to almost same isoelectric pH, it acts almost neutral. ओके, जो डाइपेप्टाइड है उसको देखिए। डाइपेप्टाइड इज सो बिग, दिस इज द डाइपेप्टाइड थिंग। तो डाइपेप्टाइड में ये और ये न्यूट्रल हैं, ये रिएक्शन नहीं करेंगे, लेकिन ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और ये भी प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। तो इसका मतलब ये दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? 2+ चार्ज के अंदर, राइट। और क्योंकि इसका MR बहुत ज्यादा है, तो ये जाहिर सी बात है लाइसीन से कम डिफ्लेक्ट होगा। तो हम यहां लिखेंगे डाइपेप्टाइड has 2+ charge, will deflect towards negative terminal,
Also, it has high MR. So it covers less distance than lysine. बेटा जगह नहीं है इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. लेट मी ट्राई अगेन. मैं इसको कोशिश करता हूँ लिखने की कि ये मेरे पास आ जाए और मैं इसको लिख दूं आपके लिए. I'll try to fix it here. काफी लेंथी है बेटा लेकिन कोशिश कर रहा हूं मैं कि ये फिक्स हो जाए किसी तरह से. राइट, लेट मी फिक्स इट. ओके, दैट्स द होल थिंग. ये हो जाएगा आपके पास NH3+ और ये भी हो जाएगा बेटा NH3+. दैट्स योर डाइपेप्टाइड आफ्टर ट्रीटिंग विद पीएच. ठीक है जी, क्योंकि मीडियम एसिडिक है ना, तो ये भी NH2 भी प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, ये वाला NH2 भी प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, इसलिए NH3+ हो जाएगा. I hope it makes sense to you. Let's move on to the next part of the question. Thin layer and gas liquid chromatography can be used to analyze mixtures of substances. Each type of chromatography makes use of a stationary phase and a mobile phase. Thin layer chromatography में हम use करते हैं सिलिका जेल की स्लरी as a stationary phase, अगर आपको याद हो. और गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के अंदर हम यूज करते हैं पोरस डायटोमेशियस अर्थ, जिसको हम इनर्ट मटेरियल भी कहते हैं. ओ, एक मिनट. पोरस डायटोमेशियस अर्थ स्टेशनरी फेज होता है, मोबाइल फेज होता है हाई बॉइलिंग लिक्विड लाइक वैक्सी पॉलीमर. हाई बॉइलिंग लिक्विड. और इसके अलावा हम और क्या यूज करते हैं? इनर्ट गैस. याद है हम इनर्ट गैस को एज अ मोबाइल फेज यूज कर रहे थे. गैस को, वो इनर्ट गैस जो है वो सैंपल को लेकर आ रही थी ग्लास कॉलम के अंदर. इसके बाद वो कह रहे हैं an unknown amino acid is analyzed using thin layer chromatography. Two chromatograph of the unknown amino acid, 4 reference amino acids are obtained using 2 different solvents. ठीक है, ये स्केल दे दिया उन्होंने और ये सॉल्वेंट फ्रंट लाइन है आपके पास. तो सॉल्वेंट फ्रंट लाइन से मैंने डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट मेजर कर लिया, विच इज 5. राइट, ये इनिशियल आपकी स्टार्टिंग लाइन है. आइडेंटिफाई द अननोन अमीनो एसिड, जस्टिफाई योर आंसर. ठीक है, सो मैं जस्टिफाई कर देता हूं कुछ इस तरह से कि एक लाइन तो मेरी आ गई और दूसरी लाइन मेरी ये आ रही है. ठीक है, सो आप नोट करो. बहुत ऑब्वियस सा नजर आ रहा है कि इस अननोन में यहां पर एस भी है, यहां पर क्यू भी है. ऐसा ही है. इस अननोन में यहां पर आर भी है, यहाँ पर एस भी है. तो ऑब्वियसली इन दोनों क्रोमेटोग्राफ में एस जो है वो कॉमन है, दोनों जगह पे आ रहा है. राइट, तो इसका मतलब जो अननोन अमीनो एसिड है वो एस है. अननोन अमीनो एसिड इज एस. जस्टिफाई करने के लिए कह रहा है मुझे, तो जस्टिफाई मैं इस तरह से करूंगा कि इस अननोन अमीनो एसिड की जो आरएफ की वैल्यू आ रही है वही एग्जैक्टली इसकी भी आरएफ की वैल्यू आ रही है. जो अननोन अमीनो एसिड की यहाँ पर आरएफ की वैल्यू आ रही है एग्जैक्टली वही यहाँ पर भी आ रही है. तो जो वैल्यू यहाँ पर है वही वैल्यू यहाँ पर भी है. तो हम यहाँ लिख सकते हैं दिस इज बिकॉज दे हैव सेम
RF values. RF का मतलब retention factor values. All right. Part G. A mixture containing 3 organic compounds is analyzed by gas chromatography and mass spectrometry. Gas chromatogram is shown. हमारे पास एक सैंपल है J, K and L. उसका retention time दिया हुआ है, peaks का area भी दिया हुआ है. The area underneath each peak is proportional to the mass of the respective compound in the mixture. The concentration of K in the mixture is 5.52 into 10 to the power minus 2 gram per dm cube. Calculate the concentration in mole per dm cube of compound L in the mixture. Okay. सिंपल सा रूल है और रूल ये है कि फॉर्मूला दिया मैंने आपको ग्राम पर डीएम क्यूब इक्वल्स टू मोल पर डीएम क्यूब इनटू एमआर. सही है. मुझे ग्राम पर डीएम क्यूब की कंसंट्रेशन गिवन है 5.52 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 ग्राम पर डीएम क्यूब. मोल पर डीएम क्यूब फाइंड आउट करने के लिए कह रहे हैं. एमआर क्वेश्चन के अंदर गिवन है 116. तो यहां से कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी मेरे पास? यहां से कंसंट्रेशन बेटा हो जाएगी 6 जस्ट होल्ड इन अ सेकेंड. अगर ऐसा है तो एग्जामिनर ने पीक एरिया क्यों दिया हुआ है? ओ, दैट्स अ वेरी पावरफुल पॉइंट गाइस. वो कह रहे थे each peak is proportional to the mass of the respective compound. इसका मतलब ये हुआ कि मुझे सबसे पहले इस डेटा को यूज करके जो पीक है उसका मास कैलकुलेट करना है. ओके, लेट्स फाइंड आउट. सॉरी, माय बैड. सबसे पहले मास कैलकुलेट करते हैं. सो सबसे पहले काम टोटल एरिया फाइंड आउट करो. तो ये हो जाएगा 8 प्लस 44 प्लस 58. तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 8 प्लस 44 प्लस 58 110. प्रोपोर्शन ऑफ के निकालना है. तो ये हो जाएगा आपके पास 44 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100. तो 44 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100. 44 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100. तो ये हो जाएगा 40% बाय मैथ्स. ठीक है, 40% बाय मैथ्स. That's the trickiest. Oh no, again it's a wrong pattern because my goodness, that's tricky. Read the question very carefully. Read the question very carefully. मैंने क्वेश्चन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी बिकॉज ग्राम पर डीएम क्यूब देखने के बाद मैंने सोचा कि आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. मेक श्योर आप ध्यान में रखें कि उसने ग्राम पर डीएम क्यूब दिया हुआ है आपको के का. ठीक है, और वो आपसे कंसंट्रेशन मालूम करवा रहा है इन मोल पर डीएम क्यूब ऑफ एल. दैट इज द होल पॉइंट. सो इसका मतलब ये हुआ कि मैं सिंपल ये काम करूंगा. माय बैड. मैं मास ऑफ एल कैलकुलेट करना चाहता हूं सबसे पहले. तो मास ऑफ एल के लिए
जो उसका एरिया है वो लूंगा, डिवाइड करूंगा उसको 44 से, क्योंकि मैं के और एल दोनों को इंगेज कर रहा हूँ। सो मेरे पास कितना आ जाएगा यहां से, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड। Okay, guys, so we were solving this part, and you guys need to be very very careful while reading the question. अगर मैं क्वेश्चन में मिस्टेक कर सकता हूँ रीड करते हुए, तो ऑब्वियसली आपसे भी हो सकती है। मेक श्योर कि बहुत ध्यान से हर चीज पढ़ी जाए। सो we want to calculate the concentration in mole per dm cube of compound L as per examiner instruction, but the mass of but the concentration of K in gram per dm cube is given. All right, so we need to compare K and L only. We don't need all of them. Okay, so first of all मैं यहां से mass of L कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो मुझे मास दिया हुआ है 58, ठीक है, और 44 से मैं डिवाइड करूंगा, क्योंकि मुझे के की कंसंट्रेशन गिवन है, उसके लिए मास जरूरी है उसका। तो मेरे पास आएगा 1.31, ठीक है जी। तो अगर 1 डीएम क्यूब में आपके पास मास दिया हुआ है 5.52 इंटू 10⁻⁻2 ग्राम, तो अगर आपके पास 1.31 मोल डीएम वॉल्यूम है आपके पास अगर, ठीक है, तो बताइए कितना होगा ये। तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 0.0727 ग्राम। सो मुझे मास मिल गया। अब जाहिर सी बात है मुझे कंसंट्रेशन निकालनी है कंपाउंड एल की, ग्राम ऑफ एल, राइट। सो कंसंट्रेशन ऑफ एल निकालना है मुझे, तो मैं मास लूंगा 0.0727 और उसको डिवाइड कर दूंगा ऑब्वियसली मैं 116 से, जो कि मुझे क्वेश्चन में गिवन है। तो मेरे पास कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी, 6.27 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स। और ये जो मोल्स थे ये 1 डीएम क्यूब के अंदर थे, राइट। तो इसलिए यही हमारी कंसंट्रेशन हो जाएगी स्ट्रेट अवे, 6.27 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर डीएम क्यूब। Question number 7. Examiner is talking about procaine is used as an anesthetic in medicine. It can be synthesized from ethyl benzene in 5 steps as shown in figure 7.1. Name all the functional groups present in procaine. Procaine, where is procaine? This is procaine. प्रोकेन में आपके पास एक एरोमेटिक अमाइन है, प्रोकेन में आपके पास एस्टर है, प्रोकेन में एलिफेटिक अमाइन। So we need to write all of them. First of all, ester, then aliphatic amine, and then aromatic amine. Last but not the least, benzene is as well, क्योंकि बेंजीन पे भी रिएक्शन होता है ना, वो भी एक फंक्शनल ग्रुप है, राइट। A molecule of protein has 13 carbon atoms. State the number of carbon atoms that are sp, sp2 and sp3 hybridized in protein. Okay, बेटा जहां ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां पर sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, देयर इज नो ट्रिपल बॉन्ड, तो 0। ओके, sp2 जहां डबल बॉन्ड होता है तो बेटा ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, all of them are double bonded carbon atoms. So we have 7 double bonded carbon atoms. उन सबकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2, sp3 देखो, sp3 ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 2 लगे हुए यहाँ पर, सही है, तो 6 हो जाएंगे, तो यहाँ 6 आ जाएगा, सही है। The proton NMR spectrum of protein dissolves in D2O is recorded. Predict the number of peaks observed. अगर D2O से रिएक्शन करवाऊंगा तो ऑब्वियसली जो पीक्स होंगी NH2 वाली वो डिसअपियर हो जाएंगी, राइट। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखूं प्रोकेन को, तो मैं बेसिकली इस तरह से लिख सकता हूं,
मैं ओपन इसलिए कर रहा हूं सो दैट यू विल गेट द आइडिया कौन सी पीक्स अपीयर होंगी और कौन सी पीक्स अपीयर नहीं होंगी। फिर है आपके पास CH2, फिर है आपके पास CH2, फिर है आपके पास N के साथ एक CH2 ये है, CH3 एक और CH2 CH3 ये है प्रोकेन का स्ट्रक्चर गाइस। अब इस प्रोकेन के स्ट्रक्चर में एक पीक जो है वो आपकी यहां से आएगी हाइड्रोजन की, ये दूसरी पीक होगी। ठीक है, 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 ओके 1 2 3 4 5 6 7 ये टोटल 7 पीक्स आनी चाहिए, लेकिन जब आप D2O से ट्रीट करवाओगे तो ये वाली पीक डिसअपियर हो जाएगी। तो टोटल कितनी पीक्स आएंगी फिर आपके पास? 6 आएंगी, तो हम यहाँ 6 लिख देते हैं। स्टेट वाई प्रोकेन एक्ट्स एज अ बेस बिकॉज लोन पेयर डोनर है, हम कह सकते हैं लोन पेयर एक्सेप्टर है, लोन पेयर डोनर है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। बिकॉज नाइट्रोजन is lone pair donor, याद रखिएगा बेटा कि ये पीक डिसअपियर हो जाएगी हाँ इन D2O। compound X can be synthesized in 2 steps from methyl benzene. Draw the structure of compound W in the box provided. तो पहले तो नाइट्रेशन होगी, तो मैं लिखूंगा CH3 और ये हो जाएगा NO2। देन फिर वो कह रहे हैं स्टेट द रिएजेंट्स एंड कंडीशंस फॉर स्टेप 1 एंड 2। तो स्टेप 1 के अंदर नाइट्रेशन हो रही है, सो आई विल यूज कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, concentrated sulfuric acid and obviously 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारा होगा। स्टेप 2 में NO CH3 COH में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है in the presence of acidic medium under heat। सही है। Procaine is synthesized in 3 steps from X. Suggest reagents and conditions for step 4 and step 5 in figure 7.1। 7.1 पे चलते हैं। Step 4 and step 5 guys, ये ग्रुप एज इट इज, ये बेंजीन एज इट इज, एसाइल क्लोराइड कन्वर्ट हो गया एस्टर में। तो एसाइल क्लोराइड एस्टर में उस वक्त कन्वर्ट होता है जब एसाइल क्लोराइड अल्कोहल से रिएक्शन करता है या अमाइन से रिएक्शन करता है। ठीक है, तो ये अल्कोहल का पार्ट है बेसिकली, तो हम अल्कोहल का पार्ट लिख देते हैं। गॉड ये तो टेक्निकल है बहुत। दिस इज CH2OH और क्या है आपके पास CH2OH, फिर CH, माय गुडनेस, फिर है आपके पास CH2 N और फिर है CH2 CH3 टेकन 2। ये आपका अल्कोहल था जिसने एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके बनाया प्रोडक्ट। स्टेप 5 में क्या हो रहा है आप नोट करें, ये NO2 कन्वर्ट हो गया NH2 में। तो मैंने आपको लिखवाया हुआ है कि जब NO2 को NH2 में कन्वर्ट करना हो तो हम टिन कॉन्सेंट्रेटेड HCl मिक्सचर यूज करेंगे और कंडीशन क्या यूज करेंगे हम, रिफ्लक्स। ठीक है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जब हम पार्ट F1 की बात करेंगे तो उसमें एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय पार्टीशन कोफिशिएंट KPC, तो आप लिख सकते हैं इट इज अ रेशो ऑफ concentration of solute
in two different solvent at equilibrium. ठीक है, देन फिर आपके पास है partition coefficient of procane between octane 1 mole and water is this. So we know the value of kpc, हमें kpc की वैल्यू गिवन है, सही है। फिर वो कह रहे हैं ऑक्टेन 1 मोल एंड वाटर आर इमिसिबल, जाहिर सी बात है इसमें हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर ज्यादा है और तो पोलैरिटी कम होगी, वाटर की पोलैरिटी ज्यादा होगी, दोनों एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होंगे, इसलिए इमिसिबल सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, a solution containing 0.5 gram of propane in 75 cm cube of water is shaken with 50 cm cube of octane 1 mole. Calculate the mass of propane that is extracted into octane 1 mole. ठीक है जनाब, तो हमारे पास दो डिफरेंट लेयर्स हैं। पहली है हमारे पास एक्वस लेयर और दूसरी हमारे पास ऑर्गेनिक लेयर। सही, हमारे पास एक्वस लेयर है, हमारे पास ऑर्गेनिक लेयर है। तो 0.5 ग्राम ऑफ प्रोकेन जो थी वो 75 cm क्यूब ऑफ वाटर में डिसॉल्व हुई और 50 cm क्यूब ऑफ ऑक्टेन के साथ। तो वो मास ऑफ प्रोकेन पूछा इन ऑक्टेन 1 मोल। तो आप जानते हैं कि भाई कितनी डिसॉल्व हुई 0.5 में से प्रोकेन ऑक्टेन 1 मोल में, हमें नहीं पता, हम सपोज कर लेते हैं कि x ग्राम डिसॉल्व हुई। तो हम यहाँ लिख देते हैं x ग्राम ऑफ प्रोकेन is dissolved in 50 cm cube of octane 1 mole। सही है, तो ये हो जाएगा आपके पास कॉन्सेंट्रेशन, यहां से आ जाएगी x अपॉन 50 ग्राम पर cm क्यूब। अब यार हमारे पास इनिशियली कितनी थी 0.500, उसमें से ऑर्गेनिक लेयर में कितनी डिसॉल्व हो गई x, तो बच कितनी गई 0.500 माइनस x ग्राम ऑफ प्रोकेन is dissolved in 75 cm cube of water। तो मैं यहां से कॉन्सेंट्रेशन अगर कैलकुलेट करूंगा तो ये हो जाएगा 0.500 माइनस x डिवाइडेड बाय 75 ग्राम पर cm cube। नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ kpc which is 1.77 equals to ऑर्गेनिक ओवर एक्वस करेंगे। तो जब हम ऑर्गेनिक ओवर एक्वस करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास x अपॉन 50 डिवाइडेड बाय 0.500 minus x divided by 75. So the value of x is going to be how much? Value of x is going to be how much? .271 ग्राम। तो आप यहाँ लिख दो 0.271 ग्राम। ठीक है, that's the concept, guys. Now that's the end of this paper. I hope it makes sense to you. Thank you very much. I hope आप feedback देंगे इस पेपर की